શલ્યા માતા કહે છે, ભાઈ આજે બહુ મોડું થઈ ગયું, તારે સવારે વહેલા ઉઠવાનું હતું. અને જ્યારે બાળકને મોડું થાય ત્યારે એની જવાબદારી કોના ઉપર જાય? હે, તમારે શું કરવાનું? આ આખા દુનિયાની વાત છે. બાળકને તૈયાર કરવાની જવાબદારી, અને જો મોડું થાય તો માના માથે જ બધું આવે. કૌશલ્યાજી એ જ વાત કહે છે, ભાઈ બરી બાર બહુ મોડું થઈ ગયું. એક કામ કરો, જલ્દી સ્નાન કરો, ભોજન કરો અને પછી રાજસભામાં જજો, કારણ કે પછી બહુ મોડું થાય. અને માને ચિંતા એવી કે છોકરો નહાય કે ન નહાય વાંધો નહીં, બીજું પૂજા કરે કે નહીં વાંધો, પણ ખાતો રહે 4-5 વખત. એકાદ વખત એકાદ ચમચી દૂધ ઓછું પીવે ને તો એ માં હાથ ઘર જઈને દોરો કરાવી આવે, ડોશીઓને પૂછી આવે, મારો લાલો ખાતો નથી. હવે ખાધું છે સવારનું કેટલી વખત. એમ કહાવત છે કે જ્યારે છોકરો બહાર ગામ પરદેશ ફરવા ગયા હોય, કમાવા ગયા હોય અને કમાઈને આવે ને, એની માં એનું મોઢું જોતા હોય અને ઘરવાળી સૂટકેસ જોતા હોય. ઘરવાળી સૂટકેસ જોવે, કેટલા લઈને આયા, અને માં મોઢું જોવે, હો મારા દીકરાનું મોઢું સુખાઈ ગયું છે. એટલે માતાજી એ સ્પષ્ટ કરીને કહે છે કે રામ બહુ મોડું થઈ ગયું છે, નહાઈને થોડું મુંહ મીઠું કરી લે અને પછી જમીને પછી જજે રાજસભામાં. ઘણા ઘરમાં, બધાની વાત નથી કરતો, પણ ઘણા લોકોના ઘરમાં એવી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. માં વહેલી ઉઠે, ઘરનું બધું કામ કરે, દીકરા માટે ટિફિન બનાવે, દીકરો નોકરી જાય અને બધું કામ પતી જાય ને પછી બહુરાની ઊંઘ ઉડે. ત્યાં સુધી બહુઓને ઊંઘ ઉડતી નથી. ઘણા એવા દીકરાઓ છે 50-50 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ પણ ઘરવાળીની હાથનો ખાતો નથી. એવા 2-4 નંગ મારા નજરમાં છે, એટલે હું તમને કહું, એની માં એને જમાડે તો જ એને સંતોષ થાય. મારે પણ એવું જ હતું. 10મા ધોરણ ભણ્યો ને ત્યાં સુધી બપોરે એક વખત તો એના હાથનું ખાવું જ પડે, નહીં તો મજા ના આવે. રામજી કહે છે, માં તું ક્યાં નહાવાની અને ખાવાની વાત કરે છે? મારું તો રાજ્યાભિષેક પણ થઈ ગયું. રાજ્યાભિષેક? હા માં. પિતા દિન મોહે કાનન રાજુ. પિતાજીએ મને જંગલ ખાતું હોંપ્યું છે. જંગલ ખાતાવાળાની આવક હાડી થાય હો જનકવા. ફોરેસ્ટ ખાતાવાળાની આવક સારી થાય. એમાં ઉત્તરાખંડ સરકારમાં ફોરેસ્ટર બન્યા હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું. એકાદ ઝાડ વેચી દે ને તો 2-5 લાખ રૂપિયા ઊભા થઈ જાય. એવા ઝાડ છે ઉત્તરાખંડમાં. પિતા દિન મોહે કાનન રાજુ. બેટા હું હજી અહીંયા ને તારી રાજ્યાભિષેક કરી કોને? મંત્રી સુમંત્રનો દીકરો અભિનંદન. એને આખી કથા માતાને સંભળાવી દીધી. આપણે ગુજરાતીમાં નથી કહેતા કાપો તો લોહી નહીં નીકળે. રાખી ન सकई न कही सक जाओ. राखी न सकई न कही सक जाओ. भांति उर दारुण दाओ. રામ જેવા દીકરાને એમ કઈ રીતે કહે કે તું જંગલમાં જા, અને રાખી પણ ન શકે, કારણ કે રાખવું તો બંધુ વિરોધ થાય, ઘરમાં ઝઘડો બધી જાય. બેટા ખાલી પિતાજીની જ આજ્ઞા છે? બોલે ના,
માતાજીની ઈચ્છા ખરી, જો ખાલી પિતાની ઈચ્છા હોય, આજ્ઞા હોય તો પિતા કરતાં માતાને 20 ગણા વધારે અધિકાર દીકરા ઉપર છે. બાપની આજ્ઞાને તોડી દે અને મારી આજ્ઞા માનીને રહે, આમાં તને પાપ લાગશે નહીં. પહેલા માતૃદેવો ભવ, પછી પિતૃદેવ. પણ જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના, જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના, તો કાનન સત અવધ સમાના, તો કાનન સત સમાના. બેટા, માતા અને પિતા બંનેના આદેશ હોય, આજ્ઞા હોય, ઈચ્છા હોય તો જા, જંગલ તને 100 અયોધ્યા કરતાં પણ વધારે સારું સાચવશે. આટલું કહેવા ખાતર તો કહી દીધું, પણ માને બહુ દુઃખ થાય છે. રામજી જ્યાં નીકળવાની તૈયારી કરે ત્યાં સીતાજી દોડીને આવે છે. કી તનુ પ્રાણ કી केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना. शिवरंजी करो. कीतनु प्राण की केवल प्राणा, कीतनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना, विधि कर तब कछु जाय न जाना. વિધિના વિધાનને કોઈ સમજી શકતું નથી. સીતાજી નક્કી કરીને આવ્યા છે, કાં તો મારું શરીર અને પ્રાણ ભગવાનની સાથે જશે, અને ભગવાન શરીરને જવાની ના પાડશે તો શરીર અયોધ્યામાં રહેશે ને પ્રાણ ભગવાનની સાથે જશે, એટલે કે હું જીવી શકીશ નહીં. સીતાજીને પગે લાગ્યા. રામ સીતા લગ્ન કરે 12 વર્ષ થયા, પણ હજી માતા પિતાની હાજરીમાં બંને જણાએ કોઈ દિવસે વાતો કરી નથી. માતાને ભગવાન પ્રણામ કરીને ક્ષમા માંગે છે. માં, તારા રૂબરૂમાં મેં અને જાનકી કોઈ દિવસે વાત ન કરી. આજે જો કંઈ અવિવેક થાય તો માં મને માફ કરજે. ભગવાન જાનકીજીને સમજાવે છે, જાનકીજી, હું જંગલમાં જઈશ, માતા વ્યાકુલ થશે ત્યારે મારી માને કોણ સમજાવશે? સુમુખી માં તો હિત રાખો તો હિ. માતાજીની રક્ષા માટે તારું રહેવું જરૂરી છે. હા જાનકી, તું રહીશ તો મને થોડું આધાર રહેશે. સીતા પૂછે છે કે માં, તમે મને કીધું તો ખરું, હું રહું એ ખરું, પણ મારી જગ્યા તમે હોય અને મારા પિતાજી જો વનવાસમાં જતા હોય તો એક પતિવ્રતા સ્ત્રી તરીકે તમારું ફરજ શું હોય એ વખતે? કૌશલ્યાજી ઉત્તર આપી શકતા નથી. રાઘવ, આને કંઈ સમજા, આને મેં કઈ રીતે ઉછેર્યું છે તને ખબર નથી. પલંગ પીઠ તજી ગોદ હી ડોરા, પલંગ પીઠ તજી ગોદ હી ડોરા, શિયન દીન પગ અવન કઠોરા, શિયન कौशल्या जी कह रही है कि हे राघव, मैंने जानकी को कैसे पाला है? पलंग ऊपर थी, पलंग पर जब सीता जी को नींद खुल जावे तो गोद में, और गोद में जब थोड़ा सा सोने लगे, थोड़ा सा नींद आने लगे तो उनको पालने में सुला के मैं झुलाती थी. सो जा राजकुमारी, આવી રીતે મેં સીતાજીને ઉછળ્યું છે. એમ કહેવાય છે એક વખત અયોધ્યામાં વિપત્તિ પડી, एक बार अयोध्या में दुकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया. वशिष्ठ जी ने कहा अगर देवी माता के मंदिर में सीता जी जाकर के दीपक जला दें तो अकाल दूर हो जाएगा. सीता जी की कौशल्या माता ने मना कर दिया.
मेरी सीता दीपक जलाएगी तो उससे झुलस के जल जाएगी। मेरी सीता की सुकुमारिता ऐसी नहीं है कि वो दीपक जला सके। કેટલી કેટલી कोमलता અને કેવી સાચવણી। અત્યારે તો સાસ એટલે सांस न लेने दे ना, उसका नाम सास होता। हाँ न लेवा दे ना, एनु नाम सास। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, शयन दीन पग अवन कठोरा, शयन दीन पग शयन दीन पग, शयन दीन पग अवन कठोरा। भगवान अनेक प्रकारे समझावे छे। सीताजी भगवान ने पण निरुत्तर करी दे छे। सीताजी चालो वांधो नहीं। ज्यां सीताराम कौशल्या ने प्रणाम करी निकरवानी तैयारी करी, त्यां लक्ष्मण जी दौड़ता आवे छे। भगवान ना चरण में ढगलो थई जाए छे। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, मने कीधुं ए नहीं। मने तो काले कहता था कि तने गादी उपर बेसाડીશ। હવે તમારે ક્યાંય જવાનું નથી, તમને ગાદી ઉપર જ બેસવાનું છે। પિતાજીની બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ છે। આ રામચરિત માનસમાં નથી, વાલ્મીકીમાં છે। જય હો પ્રભુ। સંતો કથા સાંભળવા આવ્યા છે એટલે હિન્દીમાં બોલવું પડશે અને તમારે લોકોને પણ થોડું ચલાવી લેવું પડશે। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि गद्दी पर साथ में बैठा हूँगा और अभी कह रहे हो छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे बताया भी नहीं और आप चल दिए। भगवान ना चरण में साष्टांग दंडवत करीने लक्ष्मण जी ने जोता एवं लक्ष्मण जी को देखने से ऐसा लगता था कि देह गेह सब सन तृण तोड़े, तृण के समान सबसे नाता तोड़े हुए और राम जी के साथ जोड़े हुए जाने के लिए तैयार। भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण वनवास वनवास बोलना सुनना आसान है, वनवास में रहना बच्चों का खेल नहीं है और वनवास में सब नहीं जा सकते हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपय अवश्य नरक अधिकारी, अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहे वो राजा को नरक में जाना पड़ता है। माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए पिताजी की सेवा के लिए, माताजी की सेवा के लिए और प्रजा के पालन के लिए भरत और शत्रुघ्न दोनों यहाँ हाजिर नहीं हैं। मैं वन में जा रहा हूँ तो आपका रहना लक्ष्मण जी जरूरी है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने जो कहा, जो मेरे को समझाया उसी में मेरा उत्तर है। आपने कहा प्रभु माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ जब मुझे पालना में सुलाती थी तो गीत गाती थी, तात तुम्हारे मातु बैदेवी, तात तुम्हारे मातु बैदेवी, पिता राम सब हाथ सने, पिता राम सब हाथ सने। तो मेरी माँ मुझे जब पालना में सुलाती थी तो कहा करती थी, ए इधर कुर्सी, महात्मा को इधर कुर्सी है, इस तरफ आइए, कुर्सी सब है, वहाँ रास्ता है, वहाँ से ले, तलाटी साहब इस तरफ ले लीजिए। हाँ सामने वो खाली है, बैठिए। आप बैठिए, बैठिए डॉक्टर साहब बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? आपको देख के लगता है कि कोई कथा में आया है। आइए आइए आइए। आप डॉक्टर साहब के पास में बैठिए। हाँ वाह, प्रभु
आप कह रहे हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मेरी माता ने तो पालने में झुलाते झुलाते मुझे यही गीत लोरी में सुनाई थी कि तात तुम्हारे मातु देही पिता राम सब भात सने, पिता राम सब, पिता राम सब, पिता राम सब। तो जो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपने कहा तो आप हमारे माता पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम, जाने नहीं जाने न जाने। मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। आपने कहा जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसको नरक में जाना पड़ता है। प्रभु राज आपका तो है ही नहीं। अगर आपका राज होता तो वनवास कैसे होता? वनवास हुआ है तो आपका राज नहीं है। आप कहेंगे पिताजी, तो पिताजी की जहाँ तक बात है तो आज्ञा में राज अपना भरत जी को दे चुके हैं और मुझे दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। भरत जी हमारे पिताजी चाहे जहाँ भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी माँ ने सिखाई है तात तुम्हारे मातु दे राम सब भांति सने, राम तब भांति सने। कभी कभी फैक्ट्री में काम ज्यादा आ जाता है तो फैक्ट्री के मालिक सुपरवाइजर जो होते हैं वो बिना किसी क्वालिफिकेशन के ही सबको भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि माल ज़्यादा बनाने का ऑर्डर मिला होता है तो सबको भर्ती कर लेते हैं। लेकिन जब माल बन जाता है, निर्यात कर दिया जाता है और इसके बाद जब काम नहीं बचता है तो उसमें से सबको छटनी होनी शुरू हो जाती है। प्रभु आप स्वामी और मैं सेवक, तजहु तो काह बसाए। आपकी फैक्ट्री में मुझे रखा था और आप अगर अभी छोड़ देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ लक्ष्मण आप अयोध्या में रहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक काम करते हैं, अयोध्या में हम जरूर रहेंगे लेकिन आपको वनवास में जाने के लिए छोड़ने तो जरूर आ सकते हैं। हाँ सरजू किनारे तक आपको छोड़ने जाएंगे। आप जहां तक दिखाई देंगे दोनों हाथ जोड़े हम खड़े रहेंगे। आप दिखना बंद हो जाएंगे और धूल उड़ता दिखाई देगा, तब तक उसमें आपकी छवि देखते रहेंगे। लेकिन जब वो भी तो दिखना बंद हो जाएगा, मैं उस अयोध्या में नहीं रह सकता जिस अयोध्या ने हमारे राम जी को छोड़ दिया। मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा। लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान हृदय में लगाते। एक काम करो, मैं अपने माँ से आज्ञा ले लिया हूं, तुम ही अपनी माता से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी ने सोचा भगवान अब फंसा दिया हमको, अब बहुत मुश्किल है। कौन माँ कहेगी कि जाओ दूसरे की बेटी की सेवा में? लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम जी के आज्ञाकारी भाई हैं, शिष्य हैं, पुत्र समान हैं। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास। सुमित्रा माता सोने की थाली में मोती सजा करके आरती तैयार की है। राम जी राजा बनेंगे, मैं आरती उतारूंगी। लक्ष्मण जी का सूखा मुंह देख करके, उदासी मुंह देख करके मैया पूछ रही है लक्ष्मण इतने गंभीर क्यों हो? तुम धीरे धीरे क्यों मेरे पास आ रहे हो? पहले दौड़ के आते थे, मुझे प्रणाम करके गोद में बैठते थे, आज रुक रुक के क्यों आ रहे हो? उदास क्यों हो? मेरा लखन तो चंचल है, इसमें उदासी कहां से आई? मां बहुत अनर्थ हो गया। राम जी का वनवास हो गया तो तू यहां क्यों आया? मैं इसलिए आया, मुझे राम जी ने आज्ञा दी कि माता से आज्ञा ले आओ। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारी माँ हुई नहीं। इस दुनिया में न कोई किसी का माँ है, न बाप है, न भाई है, न पति है, न कोई नहीं है। सब मानिए ही राम के नाते। जितने संबंध हैं एक न एक दिन दगा देते हैं और देते हैं। एक संबंध परमात्मा के पास साथ मनुष्य का ऐसा है कि भगवान कभी किसी को दगा नहीं देते हैं, कभी किसी से छल नहीं करते हैं। मैंने तुमको बार बार कहा कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। 3 घंटे का पिक्चर बनता है, उसमें कोई मां बनता है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है, कोई भाई बनता है, कोई भाभी बनता है।
तो वो 3 घंटे के पिक्चर में दिखता है तो वास्तव में क्या वो होता है? सिर्फ दिखता है। वो 3 घंटे का पिक्चर है और ये 50-60 साल का पिक्चर है। इसमें हम माँ दिख तो रही है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारी माता न हुई हूँ। जीव मात्र का माता पिता गुरु अपने लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब संबंध भगवान से रखो। जहाँ भगवान वहाँ अयोध्या, जहाँ भगवान तहाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अब ऐसी गलती फिर मत करना। लक्ष्मण जी ने सोचा चलो आज्ञा तो मिल गई। लक्ष्मण जी दौड़ने लगे वहां से। अभी 2-4 कदम ही बढ़े होंगे, माँ ने कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा पहले तो हाँ बोल दी और अब ममता से रोक लेगी। हाँ माँ, राम जी की सेवा में जा रहे हो बेटा, कुछ चीज साथ में नहीं ले जा सकते, कुछ सी चीज साथ में ले जाना मना है। संतों की सेवा बड़े शिद्दत से की जाती है। लक्ष्मण किला के पूर्व महाराज श्री जानकीवर शरण जी महाराज की सेवा में अगर उनके शिष्य लोग जाते थे तो सिर्फ साफी पहन करके जाते थे। उनके पास में कोई पैसा, कोई रुपया कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के जेब में पैसा है, कुछ है और वो सेवा करने जाते थे तो महाराज श्री को माथा में दर्द होने लगता था। यहीं बगल में लक्ष्मण किला हमारी आचार्य गद्दी है। संतों की सेवा, भगवान की सेवा, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। पहले आप खुद शुद्ध हो तब भगवान की सेवा हो। भगवान की सेवा करने से पहले पार्षद की शुद्धि की जाती है। भगवान की पूजा से पहले पार्षद की पूजा होती है, तब भगवान की पूजा होती है। ये नियम है। भगवान की सेवा में जाते हो तो लक्ष्मण एक बात याद रख लो, कुछ चीज ले जाना है और कुछ नहीं ले जाना है। माँ क्या नहीं ले जाना है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले बहुत कुछ है। क्या क्या न ले जाना है? राग रोष ईर्षा मद मोह जनि इनके सपने बस हो। लक्ष्मण भगवान की सेवा में जाओ तो न में राग द्वेष। राग किसी से प्रेम भी नहीं, किसी से लगाव भी नहीं, द्वेष किसी की ईर्षा भी नहीं। न ईर्षा होना चाहिए, न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, न अहंकार होना चाहिए। और ये जागते जागते नहीं, जनि सपने इनके बस हो, स्वप्न में भी ये नहीं आने चाहिए। लक्ष्मण जी कहे और कुछ उपदेश करना है भैया? बोले नहीं, इतना बहुत हो गया। लक्ष्मण जी दौड़ना शुरू किए। अभी 2-4 कदम दौड़े थे तो जैसे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर लेके पांव में बांध दिया हो। लक्ष्मण जी का पांव रुक गया, ठहर गया, थरथराने लगा। माँ, हाँ बेटा, कैसा बंधन? क्या बंधन? मैं तुम्हारे तक आना चाहता हूं लेकिन पहुंच नहीं पाता हूं। आजा बेटा आजा। लेकिन पांव उठ नहीं रहे लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी ने कहा मैया, तूने तो ये कह दिया कि राग द्वेष ईर्षा मद मोह मत्सर ये सब स्वप्न में नहीं आना चाहिए। अगर मैं जग रहा हूं तो कोई आवे या न आवे उसका मैं ध्यान रख सकता हूं, लेकिन नींद आ जावे, झपकी आ जावे और स्वप्न में कौन आ जावे इसका क्या ठिकाना? स्वप्न में तो कुछ भी आ सकता है। जाओ मैया, तेरा लक्ष्मण आज से प्रतिज्ञा करता है कि आज से 14 वर्ष तक, जब तक मैं राम जी को वापस लेके नहीं आऊंगा तब तक न खाऊंगा न सोऊंगा, क्योंकि खाऊंगा तो नींद आएगी। अन्न, नींद और नारी तीनों का त्याग किया। आप सब जहां पोथी यात्रा में गए थे, हमारे दादा गुरुजी 7 बार ग्रास में जो आता था बिना तेल बिना घी का, वो थोड़ा सा आलू का सेका हुआ, थोड़ा सा सिर्फ जीरा, कढ़ाई में सेके तो खाली जीरा रखे। 7 कोरियो बने 500 ग्राम 1 किलो, पण बधा शिष्यों माटे थोड़ा थोड़ा प्रसादी में रखवामां आवे। अने गुरु महाराज 7 कोरिया में जेटलू आवे सिर्फ उतना ही भोजन करते थे।
एक बार हमारे चाचा गुरु फलहारी जी और दूसरे चाचा गुरु राम लखन शरण जी, थोड़े ब्लैक ब्लैक थे, आप लोगों ने देखा होगा, गुजरात में वो भी काफ़ी दिन तक रहे। इन लोगों ने षड्यंत्र किया कि महाराज जी थोड़ा सा भी घी तेल कुछ लेते नहीं हैं, जल्दी इनका शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा गाय का देसी घी गाय का और उसमें आलू सेक दिया। महाराज जी जब ही मुंह में रखे तभी सब कुछ छोड़ दिए। आज आप ही लोग फलहार करना, घी क्यों डाल दिया? फलहारी जी ने कहा महाराज जी हम लोग को प्रसादी में अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऐसे कैसे पा लेते हैं? महाराज श्री कहा आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप ही पाओ। महाराज जी उस दिन उपवास किए, तब से सब ने निश्चित किया कि अब हम लोग ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। संतों की सेवा, संतों का रहना, संतों का भोजन, ये सब बड़ा कठिन काम होता है। घना लोग को कहता हो बापू हमारे घर खाने आना, बापू किसी के घर खाने नहीं जाते हैं, इसीलिए नहीं जाते हैं। आप लोग मानते नहीं हो, थोड़ा सा खा लो। कुछ हमारा छाया बहन, एक बार छाया बहन के घर खाने गए, तब से मैंने निश्चित किया गर्म जल हाथ में ले लिया हूँ। बधा सबके पास नहीं खाने के लिए ठंडा जल और छाया बहन के यहाँ गर्म जल, कम से कम 50 प्रकार नहीं आ बेटा जे छाया बहन 50 जातनी भजिया बनाया, 50 जातनी थाड़ी में भरी भरी नहीं। बापू एक तो खाबू ज परसे, बापू एक तो खाबू परसे, पर बापू नु हूँ था ज्यादा खाने से ज्यादा नींद आती है। हाँ, जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक जल्दी नींद नहीं आएगी। इसलिए बहुत से लोग जब उपवास करते हैं तो दिन भर उपवास करते हैं, शाम के समय थोड़ा फलाहार करते हैं ताकि नींद आ जावे। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि न मैं नींद लूंगा, मैं न घर वाली को साथ में ले जाऊंगा और न ही अन्न, नींद और नारी, तीनों का लक्ष्मण जी ने त्याग किया। तीनों का त्याग किया। मैया अब मैं जा रहा हूं, राम जी को वापस लेके आऊंगा, तब तुम्हारी गोदी में बैठ के तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, और तू जब लोरी गाएगी तब मैं सोऊंगा, तब तक सोऊंगा नहीं। क्योंकि जब सो जाऊंगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो सपना आएगा, सपना में अगर राग द्वेष ईर्षा आ जाएगा, इसलिए मैं इसका त्याग करता हूं। और इसका गर्व तब भगवान ने लिया है जब लंका की लड़ाई हो रही थी। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, लक्ष्मण जी सजीवन हो गए। ये बात पता चला रावण को, तो रावण ने जाके जगाया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जगा, रावण खुश हो गया। विभीषण जी के गुप्तचरों ने बताया, और भगवान को विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु रावण तो बड़ा इतरा रहा है, रावण बड़ा इतरा रहा है कि मेरा भाई आज जग गया है। भगवान थोड़ा सा हल्का सा मुस्का कर हंसने लगे, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। विभीषण जी ने कहा प्रभु कहते कहते अटक क्यों जाते हो, कह दो। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी है ना, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। जिसको तुम दिल से प्रेम करते हो उसकी प्रशंसा मुंह पर कभी मत करो, उसमें जो अवगुण है उसको दूर आईना दिखाओ। हाँ, आईना दिखाओ कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। जिसको दिल से चाहो मुंह पर उसकी प्रशंसा मत करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, निश्चित बात है। अपना है गुण है तो बहुत बढ़िया बात है, जो अवगुण है उसको दूर करने का प्रयास। लक्ष्मण जी पास में हैं, इसलिए राम जी ने मतलब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए मेरे चलते इन लोगों को डिस्कस में बाधा हो रही है। लक्ष्मण जी ने भगवान को दंडवत किया और समुद्र किनारे घूमने चले गए। तब विभीषण जी ने पूछा प्रभु ये दूसरी रामायण से मैं लेकर के आपको सब कुछ इसमें खुलासा नहीं है, इसको रामचरितमानस को पुष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहारा लेना पड़ता है तुलसीदास जी के अन्य 12 ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, आनंद रामायण का सहारा लेना पड़ता है, पद्म पुराण पाताल खंड में बहुत लंबी चौड़ी राम कथा लिखी हुई है। ये सबको वायु पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सब जगह राम कथा हर पुराण में है। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सुंदर वर्णन राम कथा है। तो सब जगह से लेकर के उसको
मिक्सचर में पीस करके तब शरबत बना के आपको देता हूँ, आपको सीधे सीधे मिल जाता है। हाँ, बहुत कसरत करते हैं हम लोग, तब जाके आपको सुनाते हैं। विभीषण जी ने पूछा, प्रभु आप अभी मुस्कुरा क्यों रहे थे? कहा, भैया देखो, कुंभकर्ण एक दिन के लिए जगा तो रावण इतना इतरा रहा है, मेरा लक्ष्मण तो 14 साल से जाग रहा है। इसलिए मुझे मेरा भगवान ने स्पष्ट करके लंका का सुंदरकांड में लिखा, जगमह सखा निशाचर जेते, मारो लक्ष्मण हनये निमिख महते ते। एक निमिष आपने जो पपनी है ना, ऊपर से नीचे आवे, इतने देर में लक्ष्मण जी सबको समाप्त करते हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में आप लोगों ने सुना था ना, भगवान 3 को मारे, 2 ही को मारे, 1 को तो लंका में भेज दिए। तारका सुबाहु को मारे और मारीच को शतजोजनगा सागर पारा। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? अनुज निशाचर कटक संहारा। पूरे जितना भी फुटकुटिया राक्षस है सबको लक्ष्मण जी ने तुरंत समाप्त कर दिया। लक्ष्मण जी ऐसे वैसे थोड़े हैं। लक्ष्मण जी अब जा रहे हैं भगवान के पास, तीनों मिल करके गए हैं दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने भगवान से फरियाद की, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। भगवान तुम्हारी बड़ी विचित्र परिस्थिति है, विचित्र गति है। अपराध कोई करे, फल कोई भोगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, जो करता है उसी को भरना पड़ता है। ना मुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म हमारे आपके द्वारा अभी हो रहा है, भूतकाल में हुआ है, जब जब पकेगा तब तक, जब जब उसकी मियाद पूरी होगी तब तक वो प्रारब्ध बन के आपको भोगना पड़ेगा। जो क्रियामान कर्म आप वर्तमान में कर रहे हैं उसका फल अभी भोग लेते हैं, और भोगते भोगते हमारा जन्म समाप्त हो जाता है और भोगना बाकी रहता है, वही संचित में जमा हो जाता है। और वो जमा वाला जब पक जाता है तो प्रारब्ध बन करके माथे पर जब मंडराने लगता है तो व्यक्ति फंस जाता है 4 रास्ते पर। एक तरफ मौत और एक तरफ कुआं, जाएं तो जाएं कहाँ। मनुष्य सब कुछ करने के बाद भी उस संकट में से निकल नहीं पाता है, और निकलता है तभी जब भोग पूरा हो जाता है। भगवान प्रणाम करके वहां से निकल रहे हैं। सुमंत मंत्री को दशरथ जी मूर्छा में से दूर होने के बाद साथ में भेजे हैं। भगवान गुरु जी के आश्रम में गए। गुरु जी के आश्रम में जाकर के मुनि सन कही बरखासन दिन है। बरखासन का क्या मतलब होता है? ये अवधी भाषा का शब्द नहीं है, ये गुजराती शब्द है। बरखासन बरस, 1 वर्ष तक। पहले के समय में गांव में ऐसी व्यवस्था होती थी, गांव का कोई मंदिर हो तो उसमें सभी घर से 12 महीना में कोई 5 सेर अनाज देता था, कोई 100 रुपया देता था, कोई 50 रुपया देता था। उस मंदिर के निभाव के लिए जो 12 महीने में हर घर में जो हिस्सा दिया जाता था उसको बरसासन कहा जाता है। ये गुजरात में अभी भी कई मंदिरों में गांव के तरफ से मंदिर को बरखासन निश्चित किया गया है। महाराज आपको साल में इतना रुपया मिलेगा, एक घर से इतना अनाज आएगा, उसको बरखासन कहते हैं। भगवान राम जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए और गुरु सन कही बरखासन दिन है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न है नहीं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, तो भगवान ने कहा हे गुरु महाराज तब तक आप सब व्यवस्था कीजिएगा। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, ब्राह्मणों के यहाँ, संतों के यहाँ जिसको जितना चाहिए 12 महीना में वो सारी व्यवस्था भगवान गुरु जी से कह के करवा दिए, ताकि हमारे यहाँ संतों को, ब्राह्मणों को मंदिरों में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज से कह के बरखासन की व्यवस्था की। अयोध्यावासी भगवान को जाने नहीं दे रहे हैं, रथ के आगे आकर के सो जाते हैं। देखिए, विधना तेरे खेल निराले,
समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधना तेरे खेल निराले समझ न आते हैं। प्रथम बास तमसा भयऊ दूसर सुर सरि तीर। भगवान तमसा नदी के किनारे रात में रुके हैं। छोर चले मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर में डगर डगर बीच रोए प्रजापुरवासी। डगर डगर बीच रोए प्रजापुरवासी। ओ जिनको राज तिलक होना था वही बने बनवासी। जिनको राज तिलक होना था वही बने बनवासी रे। फूलों से नाता तोड़ के भगवन। फूलों से नाता तोड़ के भगवन। कांटों से नाता जोर चले मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया। ओ वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। वैसे ही अब रो रही है राम लखन की मैया। ओ अवध से नाता तोड़ के भगवन। अवध से नाता छोड़ के भगवन। वन से नाता जोर चले मुख मोर चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। हाँ छोड़ चले छोड़ चले। तमसा नदी के किनारे भगवान एक रात्रि निवास करते हैं। रात में अभी अभी भगवान सोए थे। इतने में लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। सीता जी की नींद खुल गई। लक्ष्मण भैया क्यों रो रहे हो? भगवान को सफेद रेत में सोते हुए पत्थर का तकिया लगा करके लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। भगवान ने सुमंत मंत्री से कहा खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता। इस तरह से रथ को इधर उधर चला के भगवान का रथ सुबह होते
श्रृंगवेरपुर पहुंचा। वहां निषाद राज ने भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया, कंद मूल फल भगवान को भोजन कराया, भगवान ने सब कुछ प्रसाद पाया। रात्रि वहां विश्राम किए। निषाद राज के साथ भगवान का सत्संग, लक्ष्मण जी का सत्संग हुआ। दूसरे दिन सुबह भगवान गंगा पार करने के लिए गंगा नदी के किनारे आए। एक ही केवट है, वो सामने किनारे है। भगवान राम जी इस तरफ हैं, उस तरफ केवट को आवाज दे रहे हैं, गंगा किनारे खड़े हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना है उस तीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। गंगा किनारे खड़े हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। केवट नहीं कह रहा मैं नहीं ला रहा हूं, 2-3 प्रश्न करके छोड़ देता हूं, कल उत्तर दूंगा। भगवान कौन है? जही बामन विराट बन जाना। भगवान जब विराट रूप धारण किए तो दो ही कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिए, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। तो जब भगवान थोड़े बड़े हो जाते, गंगा जी को लांघ के उस पार चले जाते, तो क्या होता? पत्रकार लोगों को वर्षों का मेटर मिल जाता। भगवान का कान ऐसा था, अंगूठा ऐसा था, ऐसा नाक में पहने थे, ऐसा कान में पहने थे, ऐसी पीताम्बरी थी, ऐसा धनुष था, ऐसा बाण था, कितना मेटर मिल जाता। लेकिन भगवान उस पर जा नहीं रहे हैं, बड़े बन नहीं रहे हैं और मांग रहे हैं, आदेश नहीं कर रहे हैं। भगवान तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तो भगवान तो आज्ञा कर सकते थे, केवट नौका ले आओ। मांगी नाव, भगवान नाव मांग रहे हैं, न केवट आना, केवट नहीं ला रहा है। एक महात्मा ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने नाव मांगी नहीं, मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांगे नहीं, केवट ले करके आया। लेकिन मैं इसमें मानता नहीं हूँ, थोड़ा जोर तोड़ करने से कौमा हलन दीर्घई हर्ष पे यहाँ से उधर उठा के रख दिए, लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। मांगी नाव न केवट आना, भगवान बड़े बन नहीं रहे हैं। और ये गंगा जी हैं कौन? भगवान के चरण से निकली हुई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाये। भगवान के चरण से ही निकली हुई गंगा, तो क्या गंगा रास्ता दे भी नहीं सकती थी? ऐसी कौन सी मजबूरी? भगवान कहते गंगा तू मेरी बेटी है, रास्ता दे दे, मैं चला जाऊं, फिर तू जैसे हो वैसे रहना। तो भगवान की कौन सी मजबूरी? न रास्ता मांग रहे हैं, न बड़े हो रहे हैं, और मांग रहे हैं, और केवट सामने से कह रहा है नहीं लाऊंगा, जो हो सो कर लो। क्या कर लोगे? मतलब क्या? अगर आपको पार जाना है, अगर आपको पार जाना है तो आपको पांव धुलवाना पड़ेगा। पग धूड़ की भूरी प्रभाव माँ है। जिस भगवान राम जी के नाम लेने मात्र से जीव अपार भवसागर भी पार कर जाता हो, वो ये छोटा सा गंगा नदी पार करने में उसे क्या परेशानी होनी चाहिए? लेकिन भगवान वो भी नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में देखते हैं चाह चलती किसकी है, चाह कोशिश चाह की, प्रेम से प्रभु हार बैठे, जिद रही मल्लाह की।
भगवान हार मान लिए हैं। केवट ने कहा प्रभु हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अगर आपको पार जाना है, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं मुफ्त में ही पास कर दूंगा आपको, एक पैसा भी मैं आपके पास से नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाम उतराई चहो। महाराज आप ये नहीं सोचना कि इस बार पार कर देगा, वहां जाके कहेगा नहीं पहले इतना पैसा रखिए तब नौका से उतरने दूंगा, ऐसी बात नहीं। इत की तो बात छोड़ो प्रभु, उतराई उस तरफ जा करके एक राई का दाना भी आपसे नहीं मैं लेना चाहता हूं महाराज, पैसा कौड़ी की बात कहाँ है। न नाथ उतराई चाहो, यहाँ तो सब मेरे अंदर में है, वहाँ क्या मेरी मजबूरी होगी, वहाँ भी आपकी मजबूरी जहाँ नहीं, वहाँ भी मैं कुछ आपसे नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मतलब ये इतना भगवान के साथ आज़ादी से बात करने की छुट्टी इसको कैसे मिल गई। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको कल दूंगा। आप लोग अपने अपने ढंग से, अभी 10-12 दिन पहले एक चैनल वाले ने केवट की कथा मेरी रिकॉर्डिंग की थी 6 घंटे के लिए। 6 घंटे, मैं तो 3 घंटे के लिए बैठा था, तो बाद में पता चला कि 6 घंटा हो गया। फिर मैंने कहा भैया घड़ी देखो तो जो बाकी था वो बाकी भी रह गया है, तो उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, चैनल वाले ने चलाया है। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वो कुछ दिन में आएगा, तो आप लोग देखना। किसके किसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें आप व्हाट्सएप चलाते हो, जिसमें आप फेसबुक चलाते हो, उसमें यूट्यूब खोलना, उसमें लिखना महंत वैदेही शरण दंडी बापू, मेरा चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना। तो जितना भी हमारा जो हमारे जगदीश भाई और एक और भी लड़का है, तो वो लोग जो कुछ भी डालेगा वो आपके पास तुरंत चला आएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम सबके स्वामी जय जगदीश हो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम्हें पालन करता। हो मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे हो तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति। ओ किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। प्रभु ठाकुर तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। करूं संतन की सेवा। जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। तुमको निज दिन धावत, तुमको निज दिन धावत। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी शयनं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय धनो। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि।